یہی پرابلم ہے، یہی مسئلہ ہے. جی چلیں بھابھی چلتے ہیں ذرا پروگرام کی طرف. مجھے ذرا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فیض حمید والی پیش رفت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ فرد جرم ان پر عائد ہو گئی ہے، صحیح فرد جرم عائد ہوئی آپ کے مطابق، اور اس کے آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی بچت کے آثار ہیں جو فرد جرم 4 حصے ہم نے دیکھے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہی بات ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، جو چیز جی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی بڑی لیٹ ہو رہی ہے. فیض حمید کے جو جرائم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو ہے نہیں ہیں. جو جی ہائیبرڈ رجیم مسلط کی گئی تھی، جس نے اس ملک کا کباڑا نکال دیا معاشی طور پہ، وہ فیض حمید تھے. جو 40,000 افغان لا کے بٹھا دیے گئے تھے کے پی کے اندر، وہ فیض حمید کا کارنامہ تھا. یاد ہوگا کابل گئے تھے چائے پینے کے لیے، انہوں نے کہا تھا آل از اوکے، تو وہ اب ان کو بتانا نا کہ ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، تو بھگتے ہیں اب بیٹھ کے، وہ انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد دیکھیں، آپ اتنے زیادہ اس لالچ میں پڑ گئے کہ آپ نے ریاست کے مفاد کو پس پشت ڈال دیا صرف اس لیے کہ میں کسی پوسٹ کے اوپر پہنچ جاؤں. تو جب عمران آئینی طور پہ نکلے تھے اپنے اقتدار سے، تو اس کے بعد انہوں نے تقرری روکنے کے لیے، اور بہت سے میں نے تجزیہ کاروں کو سنا ہے جو بڑے کلوز ہیں نواز لیگ کے سرکل میں، انہوں نے کہا کہ فیض حمید نے نواز شریف صاحب کو معافی نامہ بھی بھیجا تھا، اور ان کو کہا بھی تھا کہ جی میں آپ کا ساتھ بڑا لائل رہوں گا. اور لیکن شکر ہے کہ میاں صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی. ویسے تو مشیر ڈھونڈنے میں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی. آج کل ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ احسان فراموشی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جن کی نواز شریف کی وجہ سے وہ جس مقام پہ پہنچے، اور آج وہ بیٹھ کے ان کو سیاست سکھا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بھی کہا. اس کے بعد جب دیکھا کہ کوئی نہیں چل رہا تھا تو پھر وہ خان کی طرف گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی جو تھے وہ تحریک عدم اعتماد میں جا رہے تھے اپوزیشن کے ساتھ، پھر اچانک ہی ان کو کوئی کال آئی اور اٹھ کے عمران کے پاس چلے گئے. تو وہ فیض حمید صاحب ہی تھے، کیونکہ اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کور کمانڈر پشاور تھے، اور پاورفل تو تھے. اب اس کے بعد انہوں نے دھرنا کروایا. پھر اس کے بعد انہوں نے ہی عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے عمران سے لانگ مارچ کروایا. جب کچھ نہیں بن پڑا تو پھر انہوں نے 9 مئی کروائی. 9 مئی کیا تھی؟ ایک بغاوت تھی، وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، اور وہ بغاوت ان کے اپنے ادارے کے خلاف تھی. تو ادارہ تو پھر اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ جس کا اتنا ڈسپلن ہے، جہاں پہ ہر چیز کا اتنا دھیان رکھا جاتا ہے، وہاں پہ آپ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کریں اور آپ بچ جو. اور ماضی میں ہم نے بہت سے لوگوں کو کورٹ مارشل ہوتے ہوئے دیکھا. جنرل ضیاء کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی، جنرل مشرف کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی، ان سب کا مارشل لا ہوا تھا اس چیز کے اوپر. تو عاصم منیر کو بھی وہ کروانا چاہ رہے تھے بغاوت کے، چلے جی بغاوت ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے کور کمانڈر کو بھی چارج شیٹ کر دیا گیا. وہ غائب ہے بالکل سین سے کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں، کور کمانڈر ہاؤس میں کیسے گھس گئے وہ لوگ. پوری ایک کور ہوتی ہے کمانڈر کے نیچے. اسی طرح جب انہوں نے پنڈی یا انہوں نے بھاولپور یا انہوں نے گجرانوالہ کینٹ کے اندر جانے کی کوشش کی تھی، تو وہاں کے کور کمانڈر نے ریٹیلیٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے جو تھے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو لارڈ کور کمانڈر کا بھی پھر وہ ہو رہا تھا. تو جرائم تو بہت زیادہ ہیں. پھر بشرا بی بی جو تھی وہ تو چلتے ہی جنرل سورسز کہتے ہیں کہ جنرل فیض کے کہنے کے اوپر تھی. جو جنرل فیض کہتے تھے وہ بشرا بی بی جا کے آگے عمران خان سے کرواتی تھی سارا کچھ. اب عمران خان نے آج جب صحافیوں سے بات کی ہے، پہلے تو خان صاحب کی یادداشت مجھے لگتا ہے جاتی جا رہی ہے، بادام کھانے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی جنرل فیض جو ہے وہ میری تو بات سنتا ہی نہیں تھا، وہ تو مجھ سے ملتا بھی تھا تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ ملتا تھا، جنرل باجوہ اس کو بریف کرتے. اور اوپر سے انہوں نے کہا 9 مئی اگر ہوا ہے تو اس میں جنرل باجوہ کو پکڑیں، کیونکہ فیض حمید اس کے ماتحت تھا. تو خان صاحب جب 9 مئی ہوا تھا، جنرل عاصم منیر تھے آرمی چیف، جنرل فیض حمید ریٹائرڈ تھے اور جنرل باجوہ بھی ریٹائرڈ تھے. تو ان کا لنک نہ ڈھونڈے بیٹھ کے آپ اپنی خیر منائیں کہ وہ جو آپ کی آڈیوز آپ کے لوگوں کی موجود ہے، یاسمین راشد کی موجود ہے اور لوگوں کی موجود ہے، مراد سعید کی ہے، کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے گی ہمیں ٹارگٹ وہاں پہ جائیں. پھر یاسمین راشد نے کہا چلے ہم کور کمانڈر ہاؤس چلتے ہیں. پھر عمران کے بھانجے نے جو پتلونیں لہرائی تھی، یہ بلا وجہ نہیں تھا، یہ پلاننگ تھی، ریاست کے خلاف تھی، شہداء کا مذاق اڑایا گیا تھا. اور فیض حمید نے چونکہ اپنے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، اپنے ادارے کے خلاف بغاوت کی ہے، تو ان کو بھگتنا تو پڑے گا. اور ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی والا معاملہ سب کے سامنے کرپشن کا. یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ کسی طرح سے ان کی معافی نظر نہیں آتی، لیکن کیا ان کو سزا اگر ہوتی ہے، عمران خان کو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب بھی پھر فوجیوں کے مہمان بننے جا رہے ہیں، ملٹری کورٹس پہ جائے گا معاملہ ان کا؟
देखिए लगता तो यही है बज़ाहिर कि ये जाएगा वहाँ पे, लेकिन उसमें एक हर्डल अभी आईनी बेंच का फैसला भी है। अभी आईनी बेंच ने जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि आप अपना ट्रायल जारी रखें, लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते जब तक कि हमारी तरफ से फैसला नहीं आ जाता। तो अगर ये बगावत साबित होती है रासद के खिलाफ तो फिर तो इसका ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट में जाएगा। लेकिन ये है कि उसके बाद भी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक जो है वो मौजूद होगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ आप नोट करें कि ये जो मुज़ाकरात की तरफ एकदम से आए हैं और गैर मशरूत मुज़ाकरात की तरफ आए हैं, इसका मतलब यही है कि इनको कहीं न कहीं धड़का लगा हुआ है। क्योंकि पीटीआई के सियासतदानों के नाम भी आ रहे हैं। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है कि 50 सियासतदानों के साथ फैज़ हमीद राब्ते में थे। अब उनमें से बहुत से लोगों को अपनी जान के लाले भी पड़ गए होंगे और अब वो एक सियासी रास्ता चाह रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं। जिसका इज़हार आज इमरान ने भी सहाफ़ियों से मिलते हुए कहा, उसने कहा कि जी मेरे जो लोग हैं वो बाहर हँसी-खुशी रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो उनको कहा है कि जो लोग लापता हैं उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें दें। फिर वो एक वही अपनी मुर्गे की टाँग वाली बात के मैं तो सिविल नाफरमानी की कॉल दूँगा, मैं तो 15 तारीख को सोग मनाएँगे, उसके बाद मैं उनको कहूँगा मैं बड़ी भरपूर तहरीक चलाऊँगा, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आप रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान मत भेजें। तो अभी जो फौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया था और उसके बाद उन्होंने फौजी प्रोडक्ट्स के तमाम के शेयर्स इंक्रीज़ करवा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना हो कि रेमिटेंस रिएक्शन में ज़्यादा आने शुरू हो जाएँ। हाँ, साहब को याद होगा कि जब रियासत उनके साथ थी 2014 में, रियासत से मुराद आप समझ रहे होंगे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी। जब हर चीज़ उनको उनके लिए की जा रही थी, उस वक़्त उनकी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं चली थी, तो आज कैसे चलेगी? ये लोग भूल रहे हैं कि जो बंदा भी सिविल नाफरमानी की कॉल में आता है, बिजली का बिल, गैस का बिल ये सब नहीं देगा, उनके आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएँगे। तो अगर आपके एक दफ़ा आईडी कार्ड पाकिस्तान में ब्लॉक हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप बैंकों से पैसा निकलवा सकेंगे, ना आप किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, और बहुत सी जगहों पे खरीदो-फरोख्त भी नहीं हो सकेगी। सो जो लोग भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि उनको याद होगा कि डी चौक के अंदर भी लाठियाँ, डंडे इनके लोगों ने खाए थे और ये बाकी भाग गए थे, और इनके लोगों के ऊपर गोलियाँ भी अली अमीन गंडापुर ने चलाई थी, जो कि अब तो वीडियो एविडेंस आ चुका हुआ है। तो ये अपने वर्कर्स को आगे करके खुद सारे पतली गली से निकल जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्कर अब इतना बेवकूफ है कि इन बातों के अंदर आएगा, लेकिन इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन शो हो रही है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं, बुशरा बीबी भी फ्रस्ट्रेट हैं। आज इसी वजह से बुशरा बीबी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, वैसे तो बड़ी तकरीरें कर रही थी। ऐसे तो बड़ा बढ़-बढ़ के बता रही हैं लोगों को, लेकिन आज देती सहाफ़ियों के सवालों के जवाब। अगर सियासतदान इतनी बन रही थी, इतना लीड कर रही थी, तो मामलात कहीं न कहीं तो खराब हैं और इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग मुज़ाकरात की तरफ आए हैं, वो भी गैर मशरूत। हाँ, मुज़ाकरात पे भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपने अभी बुशरा बीबी का ज़िक्र किया है, तो बुशरा बीबी जो हैं, उनके मामले भी तो फैज़ हमीद सब तक मिलते-जुलते जा रहे हैं। फैज़ हमीद ने उन्हें 2 ऑपरेटर दिए हुए थे, इंकशाफ हुआ है, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके घर से मिले हैं, कुछ नोट भी मिले हैं। तो क्या बुशरा बीबी भी रडार पे आ सकती हैं फैज़ हमीद वाले केस में, कि फैज़ हमीद के साथ वो भी राब्ते में थी ये सब कुछ करवाने में? बुशरा बीबी तो बहुत से मामलात पे रडार पे है ना। देखिए तोशाखाना 2 के अंदर भी फर्द जुर्म उन पे आयद हो गया। अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है। उससे पहले मलक रियाज से जो हीरे की अंगूठियां वगैरह वो लेती रही, उसमें भी वही इन्वॉल्व थी। और जो बहुत से सोर्सेज से बातें आई थी पहले भी कि बुशरा बीबी को लॉन्च भी किया गया था इन्हीं की तरफ से। और वो जो खान साहब को बताती थी चिल्ला कर लें या ये चीजें होने वाली है, तो वो उनको बताया जाता था। वो पहले कह नहीं रहे थे कि उनके जो मौक्कल थे उनके ताने-बाने भी जाके फैज़ हमीद के ही निकलते थे। तो अगर फैज़ हमीद के साथ जो मैंने भी पहले आपको बात की थी, कैसे ज़राए के ज़रिए खबरें आ रही हैं कि फैज़ हमीद इंस्ट्रक्शन बुशरा बीबी को देते थे और वो जाके आगे खान साहब से काम करवाती थी वो सारे। तो अगर बुशरा बीबी की तरफ भी ढांढे जाएँगे, तो बुशरा बीबी से भी इन्वेस्टिगेशन होगी, बुशरा बीबी पकड़ी जाएगी। और बुशरा बीबी ने जो अभी इतनी कॉल दी थी, फाइनल कॉल, बार-बार कह रही थी मैंने डी चौक की तरफ जाना है, वो भी यही डेस्परेशन थी फैज़ हमीद को बचाने की कि किसी तरह उसका ट्रायल रुक जाए, किसी तरह उसको चार्जशीट ना किया जाए। ये सब उसी को रोकने की सारी हो रही थी, क्योंकि जितने सीनियर सहाफ़ी थे वो सब बता रहे थे कि मार्च के अंदर जो है वो चार्जशीट कर दिया जाएगा फैज़ हमीद को और बहुत लंबा मामला नहीं चलेगा। मिलिट्री कोर्ट के अंदर जनवरी-फरवरी तक सज़ा भी सुना दी जाएगी और सज़ाएँ जो बताया जा रहा है कि जिन-जिन दिफ़ात के तहत होगी फैज़ हमीद को,
उसमें आप देखें कि आर्टिकल 6 लग सकता है अगर ट्रीज़न की तरफ जाएँगे, सीक्रेट एक्ट की जो गद्दारी कह रहे हैं, तो आपको पता है उसकी सज़ाए मौत है। उम्र कैद भी उनको हो सकती है, करप्शन के मामलात भी हैं, बगावत के ऊपर भी उनको सज़ाए मौत हो सकती है। तो बहुत मुश्किलात हैं जनरल फैज़ हमीद के लिए, और उन मुश्किलात से वो लोग भी नहीं बचेंगे जो उनका साथ दे रहे थे। तो जो बंदा भी उनके साथ था, उसको अपने किए का भुगतना पड़ेगा। किए का भुगतना पड़ेगा, और उसमें मियाँ बीवी दोनों आते हैं। अभी आपने मुज़ाकरात की बात की है, तो फैज़ हमीद के बाद अचानक पीटीआई का टेबल जो मुज़ाकरात है उस पर आकर बैठना, और उसमें भी कोई शर्त भी पेश नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जी मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, उसको ज़रा बेहतर करने के लिए। तो क्या ये दुरुस्त है, या फिर ये कुछ जनवरी तक टाइम लेना चाहते हैं ताकि उधर से अमेरिका वाले सदर आ जाएँ, तो हम लोग ज़रा थोड़ा-सा टाइम गेन कर लें? देखें, जो सहाफ़ी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखते हैं, आजकल तो वो भी अपने व्लॉग में कह रहे हैं कि जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर हुकूमत को आना था, वो आ चुका है, लेकिन वो रेज़िस्ट कर गई है। अगर उसको रेज़िस्ट कर गई है, तो फिर ट्रम्प ने अभी तक कोई ट्वीट तो की नहीं है ना उनके हक़ में, जो कहते थे आते साथ ही कर देगी। अब वो उठा के वो तो हर मामले के ऊपर कह रहा है कि ये हमारा मामला नहीं है। अगर आप देखें, वो यूक्रेन वॉर पे कह रहा है हमारा मामला नहीं है, वो सीरियन वॉर के ऊपर कह रहा है हमारा मामला नहीं है। तो ट्रम्प क्यों हर जगह पे अपने सींग फँसाएगा, जबकि उसने अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फँसाने हैं। तो वो मेरा ख़्याल में वो हर जगह पे नहीं घुसेगा। दूसरी बात ये है कि ये टाइम नहीं गेन कर रहे। हुँ। अगर इमरान खान को छोड़ भी दिया, तो इमरान खान बाहर निकल के कोई गवर्नमेंट टॉपल नहीं कर देंगे, ठीक है? गवर्नमेंट यही रहेगी। ट्रम्प ने अगर कहना है तो यही कहना है ना कि इमरान खान को छोड़ दें, ये तो नहीं कहना कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, और ना ही वो इस हद तक जाएँगे। तो जो ये मुज़ाकरात की तरफ लोग आ रहे हैं, उसकी वजह है फैज़ हमीद को चार्जशीट करना, जो ये लोग एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये भी एक अफ़वाह उड़ाई गई हुई है, क्योंकि आपको देखा लगा होगा कि बहुत से लोग जब इनके कहते हैं सोशल मीडिया, कहाँ पे गया फैज़ हमीद, पकड़ लिया हुआ था, फिर लगी नहीं फर्द जुर्म। तो अब जब वो लग गई है, चार्जशीट हो गए हैं और आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है, तो बहुत से सियासतदानों को अपने मामलात की पड़ गई है, क्योंकि उनके ताल्लुकात जो निकले हैं, उनका जो फ़ोन पकड़ा गया, उनके जो एसएमएस के एक्सचेंज है हुए हैं, उनमें बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो इस वक़्त पीटीआई में मौजूद हैं। तो उनको अपना पड़ गया है, इस वजह से वो हुकूमत की तरफ आ रहे हैं कि अब हम सियासी मामलात की तरफ चलें, अब हम पार्लियामेंट की तरफ चलें। वो याद होगा ना कि वो एक डिप्टी ने जब एक बंदे को कुट लगाई, तो उसने कहा हाँ, हाय माँ, तो माँ ने कहा सदके जावा उस डिप्टी दे जिन्हें माँ याद कराती। तो वही बात है कि अब सदके जाएँ हम फैज़ हमीद की वो चार्जशीट के, कि इनको पार्लियामेंट याद आ गई। ये वही पार्लियामेंट थी जिसको ये समझते ही कुछ नहीं थे। फॉर्म 47 की हुकूमत, हमने बात ही नहीं करनी इनसे, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना है, इनके पास क्या इख्तियारात है। अब वो कह रहे हैं आएँ हमसे मुज़ाकरात करें। आज वो एक लतीफ़ा भी चल रहा था कि उमर अयूब और गौहर भट्ट जो थे, वो एक रिक्शे वाले से पूछ रहे थे कि कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा कहाँ जाना? उन्होंने कहा पार्लियामेंट जाना है मुज़ाकरात करने के लिए। तो ये जो मामलात है ना, अब इनके अपने जब गर्दनों पे छुरियाँ फिरने वाली बात हो रही है, तो ये सारे जो है पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं, मशरूत मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। वही बात है जो हम पहले दिन से को कहते थे कि अगर सियासतदान की तरफ बिहेव यस। करेंगे, तो सियासत में ही आपका जो है वो सर्वाइवल है। देखें, इमरान खान जो थे ना, अगर वो आ गए हाइब्रिड रिजीम के ज़रिए, ठीक है? लेकिन अगर वो अपने दौर के अंदर सियासतदानों वाला बिहेव कर लेते ना, इंतकामी कार्रवाइयों में ना पड़ते, इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो, वो अपने आप को ताहयात बादशाह बनाना चाहते थे बिशारुल असद की तरह, कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं तब तक हुकूमत करता रहूँ इस मुल्क के अंदर, और मेरे जितनी ऑपोजिशन है, या वो जेल में रहे या वो दुनिया से चली जाए, तो फिर दूसरे सियासतदानों ने भी अपने सर्वाइवल की तरफ जाना होता है। और ये वो सर्वाइवल होता है फिर जिसके अंदर थोड़े बहुत उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो इमरान खान को सारी ज़िंदगी सब यही कहते रहते हैं कि सियासत करें, सियासत करें, सियासत के अंदर फिर जो है ना आपका सर्वाइवल, फिर अदम एतमाद से निकले, अगर पार्लियामेंट के अंदर रहते, अगर भरपूर तहरीक चलाते, अगर अपने वो मुहिम चला रहे होते, तो आज वो जेल में ना होते, वो बाहर बैठे होते, वो पार्लियामेंट के अंदर होते, चलो ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे होते, जो वोट बैंक है अपना उसको इंटैक्ट रखते। लेकिन उन्होंने इंतशार का रास्ता अपनाया, धरने, एहतजाज, हमले कर दो, गिराओ, जलाओ, ये सब कुछ चीज़ों के ऊपर लगे रहे हैं। केपीके के वो जो वज़ीर आला हैं, उनको कोई और काम नहीं सिवाय इसके कि जितने वसाइल हैं इधर लगा दें। केपीके में ना आपकी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटियों के अंदर फीसें देने के, आपको तनख्वाहें देने की टीचर्स को पैसे नहीं है। प्राइमरी वो जो टीचर्स थे वो आपके रोड्स के ऊपर आए हुए थे। तो वहाँ पे हो क्या रहा है ना?
कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि वसाइल इधर सारे झोंके हुए हैं कि हमने सिर्फ रियासत के ऊपर यलगार करनी हो उस और हर दफा उनकी यलगार जो है वो नाकाम होती है। वर्कर भी उनका वहां पे तंग आया हुआ है। अभी जिनकी गाड़ियां टूटी हैं या जिनके नुकसानात हुए हैं वो अब उनके एमपी खुद मीटिंग्स में बैठ के कह रहे हैं कि आप हमारी लोग हम जाते हैं अपने हलकों में लोग हमें कहते हैं हमें पैसे दें। फिर अभी अली अमीन गंडापुर को उनकी कैबिनेट के अंदर उनके वुज़रा ने कहा जी हमने सिविल नाफरमानी में कोई साथ नहीं देना, आप जाके खान साहब को बता दें। इसीलिए आज खान साहब ने साथियों से बात करते हुए कि कोई साथ ना दे, मैं फिर भी कॉल दूंगा सिविल नाफरमानी की, क्योंकि जाहिर है वो अखबार में पढ़ तो रहे हैं कि क्या खबरें आ रही हैं, क्या सब कुछ हो रहा है। लोग अब नहीं जाना चाह रहे उस इंतशार की तरफ जिसके बाद जाके उनके लिए रास्ते बंद हो जाए। देखिए आप मुझे बताएं, नवाशी साहब जो थे वो त्यारा साजिश केस में उनको भी सजाए मौत का फैसला सुना देगा, फिर वो उम्र कैद के अंदर आ गया, उनको किस तरह जेल में रखा गया था। लेकिन क्या उनके उनके साथियों पे कितना तशद्दुद हो रहा, वो साद रफीक के ऊपर हुआ, परवेज रशीद के ऊपर हुआ, ख्वाजा आसिफ वगैरह, राना सनाउल्लाह के साथ कितने टॉर्चर हुए। किसी ने रियासत के ऊपर हमला नहीं किया, किसी ने इदारों के ऊपर जत्थे लेके नहीं जाके नहीं करते रहे। बाद में भी इनके साथ किस तरह मरियम बीबी के साथ वो जेल में गए, बीवी उनकी जो थी वो बिस्तर मर्ग के ऊपर थी, लेकिन उन्होंने किसी टाइम पे भी अपने वर्कर को ये नहीं कहा कि जाओ जलाओ घराव करो, इंतशार की पॉलिसी अपनाओ, इसलिए कि वो सियासतदान थे। वो सियासत करने के लिए आए। ये मुल्क रहेगा तो सब रहेंगे। आप आसिफ अली जरदारी को देख लें, जिस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई है, लोगों ने सिंधियों ने नारे लगाए पाकिस्तान न खप्पे, उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये तो वो है बंदा जो कहता है कि पाकिस्तान अगर मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे, मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश ही करता है। मतलब आपने कभी इमरान खान के मुँह से खैर की बात सुनी है पाकिस्तान के लिए? और इनके सपोर्टर भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए इंतज़ार करते हैं कि कोई बुरी खबर आए। कोई बुरी खबर हमें पाकिस्तान से मुतल्लिक मिल जाए, वो किसी खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं करते। वो अरशद नदीम जेवलिन जीत के आ जाता है तो वो उस पे भी जल जाते हैं कि ओहो इसको हीरो क्यों बनाया जा रहा है। इन्होंने छोड़ ही दिया है कि हम किसी हीरो को भी हमने सेलिब्रेट नहीं करना, इस मुल्क में कोई खुशी की खबर को सेलिब्रेट नहीं करना, हर वक्त हमने एक मातम की कैफियत में रहना है क्योंकि खान साहब नहीं है। मातम की रहना, चाहे वो शाद अफरीदी हो या कोई हो, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, पीटीआई जो है वो डी चौक में जो लाशों का प्रोपोगंडा करती रही है, बड़ी कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो हालांकि वो ऐसी चीजों में बड़ी कामयाब होती थी। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता इनका ये जो प्रोपोगंडा करने का एक स्टाइल है, या इसको भी लोग अब देख रहे हैं? जैसे इमरान रियाज साहब ने वो एआई की बनी तस्वीर लगाई और 3 दिन के बाद कहा नहीं ये तो एआई की है, मुशाबत है। हालांकि इस्लामाबाद में तो किसी ऐसी जगह पे हमने खून के निशान नहीं देखे। तो काफी हद तक इनका जो प्रोपोगंडा है लोग अब समझ रहे हैं, इससे कुछ डिसलाइक करने का वो लोगों में रुझान पैदा हो रहा है, आप समझती हैं? देखिए, जो कल्ट फॉलोइंग है ना, उनको तो अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी एक तादाद है ऐसी जो बिल्कुल अंधे पैरोकार बने हुए हैं और वो हर झूठ को डाइजेस्ट करते हैं और वो सर्च करने की या सच जानने की कोशिश नहीं करते। वो उसी को सच समझते हैं और उसको मानते हैं सच, जो उनको सैटिस्फाइड कर देता है कि पीटीआई और इमरान खान बेगुनाह है और उनके साथ बड़ा ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है। वो दूसरा नैरेटिव सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक बहुत सा बीच में स्विंग वोटर भी होता है, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता सोच रहा है, क्योंकि देखिए झूठ जो होता है ना उसका पोल जल्दी खुल जाता है और झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो झूठ की मुद्दत भी थोड़ी होती है। अब आप देखें कि इनके जो झूठ है या जिनके साथी हैं आहिस्ता-आहिस्ता उनके रीट्वीट्स भी कम होते जा रहे हैं। उनके यूट्यूब पे भी व्यूज़ डिक्लाइन कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि